बहुत जगह जिप लाइनिंग करी होगी, बहुत जगह बंजी जंपिंग करी होगी, बट जस्ट लुक हियर, एक बार यहाँ पे करके दिखा दो. दिस इज अल्टीमेट. नीचे देखो नीचे, एंड जस्ट लुक देयर. बादलों की नगरी मुक्तेश्वर में आपका स्वागत है. So let's straight away talk about how to reach there. From Delhi, it will take 8 to 10 hours. If you're going by train, the railway station is Kodgodam, and if you're going by plane, then Pantnagar airport is the nearest. So this distance was from Delhi to Mukteshwar, but we are staying at Oak Climbing Resort, which is located in Gunia Lake, जहाँ पर आप मुक्तेश्वर से 1 घंटा पहले ही पहुँच जाओगे. And watch this video till the end because we are going to cover 2 days here in Mukteshwar, and this is gonna be a detailed video, what you should do and what you should not do. And I am specifically staying at this resort because this resort is situated in a very offbeat location and you are going to love it. So this is our cottage and look how beautiful it is, and this is a small room tour that I'm giving you, and we also have a little sitting area outside the room. Okay, so I am back with another vlog, and today I am in Mukteshwar. Yes, and I'm staying at this resort that I'm gonna show you just now. And this is an amazing resort. अगर आप कभी आ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर रुको. सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी. वॉच द वीडियो. सो ये रास्ता जा रहा है कॉटेज की तरफ और हमारा एकदम लास्ट वाला कॉटेज है. एंड लुक एट द व्यू. ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है. यहाँ पे एक एक्टिविटी एरिया भी है और नीचे बॉनफायर एरिया है. यहाँ पे स्विंग्स एरिया है. स्विंग्स के साथ टेम्पोलिन एरिया है. आगे आई थिंक पूल भी है दैट आई विल शो यू इन द वीडियो. जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टी. लुक एट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स जो आपको मुक्तेश्वर में हर जगह मिलेंगे. तो जो ये वाला कॉटेज है वो आपको ईजिली 4000 में मिल जाएगा फॉर द अकोमोडेशन ऑफ 2 people. एंड इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली, दिस cottage is the best for you. As you can see, 2 beds are attached. I specifically recorded this video for showing you guys. In this video, I am going to tell you all the things that you need to know about Mukteshwar, how to come here, where to stay, and what to do, each and every detail. So basically, if you are bored of going to Bhimtal and Nainital, then you should definitely come here because Mukteshwar is a hidden gem. And let me give you a tour of the hotel that I'm staying in. So this hotel is basically not located in Mukteshwar, but ये भीमताल and Mukteshwar के बीच में ही पड़ता है. So this is basically the nearest bus stand that you are seeing on the screen, and this bus stand is only 5 minutes away from this hotel, and the name of the hotel is Oak Climbing Resort. And just have a look at where I'm sitting right now. So I'm sitting here. Just look at this. Nothing else, just trees, nature, and no one around me. जब आप ये वाले रिजॉर्ट में आ रहे होगे तो ऑन द वे फ्रॉम भीमताल टू दिस रिजॉर्ट, सो इसके बीच का जो 1 hour का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अमेजिंग. लाइक व्हेन आई वाज कमिंग हियर, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम थी एंड ऑल आई कुड सी वाज ग्रीनरी एंड ट्रीज एंड द नेचर. I departed from Delhi around 7 o'clock or 7:30, and I reached here around 3:30 in the afternoon. Since half of the day is already gone, what I have decided is let's make this day as a just fun day at the resort, because इस resort में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. There are so many things in this resort. Swimming room में भी they have a carom board, they have table tennis and pool table also. And नीचे ही एक swing area भी है. So अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं या फिर आप खुद आ रहे हो and you like swinging on the swings, then you can definitely go and check out that. And उसी के एकदम सामने रेस्टोरेंट है एंड द रेस्टोरेंट इज़ सो एस्थेटिक एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट जो यहाँ का जो ब्यूटी है, जो यहाँ की जो सीनरी है, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन दिस वीडियो. मतलब जितना वो ब्यूटीफुल है ना, इतना ब्यूटीफुल वो नहीं आ रहा. सो दिस इज़ देयर इंडोर गेमिंग एरिया. लुक एट दिस. व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव अ टेबल टेनिस, वी हैव कैरम बोर्ड एंड वी हैव पूल टेबल. एंड ये पूरा ऐसे बना हुआ है. लुक एट दिस. So it means like if you're coming here and you're coming here to enjoy the nature, enjoy
you know, something different, proper resort valley feel that you can come here and you can enjoy. By the way, lighting. And after spending one day here, tomorrow I will be going to full Mukteshwar tour, and I'm going to show you all the tourist places that are here. Basically what I have thought is that I want to divide this Mukteshwar trip into two parts. So first part is all the tourist places. So in first video, like not in this video, in the next video that you will be watching soon after this part, in that video all the tourist places will be covered, and then in the third part most probably I will show you all the offbeat places of Mukteshwar. So this is the plan. And today, since I reached here at around 3:30 or 4 o'clock, so half of the day was already gone. So, and plus this resort was very big, so I thought, why not enjoy the day today, why not relax today here in the nature with this greenery. And अगर मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी ना, you will love it. So basically the thing is, दिल्ली में कल ही बारिश हुई है, जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन गया है, थैंक गॉड. एंड यहाँ पर भी लास्ट 3 दिन से बारिश आ रही है. दिस इज़ द थिंग. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ का जो मौसम हो रखा है, दैट इज़ सीरियसली अमेजिंग. मैं आपको यहीं से व्यू दिखाती हूँ. एंड ऑल्दो आपको इस पूरी ट्रिप में बस व्यूज़ ही देखने हैं मुक्तेश्वर के. भाई बंद कर दो नैनीताल और भीमताल जाना. इनफ ऑफ दैट, जस्ट कम टू मुक्तेश्वर यार, लाइक व्हाई नॉट. ये गेमिंग एरिया था. आई वाज सिटिंग देयर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू. वहाँ पे स्विंग एरिया है, एंड स्विंग के सामने ही रेस्टोरेंट एरिया है. सो लेट मी गो देयर एंड लेट मी शो यू व्हाट्स दैट. सो देयर इज़ अ लिटिल फाउंटेन एरिया हेयर. अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसे क्लीन कर रहे थे. एंड लुक व्हाट्स देयर. भाई एक बार व्यू देखो, जस्ट चेक आउट दिस व्यू. पूरे माउंटेन्स पे बादल छाए हुए हैं, एंड इट्स नॉट लाइक स्टिल बादल हैं, दे आर मूविंग. सो दिस इज़ द टेम्पोलिन एरिया ओवर हेयर. एंड टेम्पोलिन एरिया के एकदम साथ में ही ये रहा स्विंग एरिया. नाउ लेट मी शो यू देयर डाइनिंग रूम. एंड जस्ट लुक हेयर. जब ठंड होती होगी या फिर शायद रात में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती होगी, तो यहाँ पे बॉनफायर होती है. एंड वो रहा सामने इनका डाइनिंग एरिया. So this is Mud Masala, the name of this dining room. And let me show you what all is here. So this is the entry. Look. So look at the collection of all the utensils here. पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे वो सारे यहाँ पे. एंड एक बार यहाँ पे देखो, मतलब जितना ये असली में अच्छा है उतना ही दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में, बट इट इज़ रियली वेरी एस्थेटिक. एंड यहाँ पे बुफे भी लगता है. एंड लुक ऑल द थिंग्स ओवर हियर. क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे. ये आपके कैंप्स भी हैं यहाँ पे. अच्छा ये टेंट है. ओके. एंड दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया विच यू विल सी जस्ट आफ्टर द एंट्री. एंड दे ऑल्सो हैव अ पूल हेयर, बट दिस इज़ क्लोज्ड करंटली. सो ये एकदम एंट्री पे ही पूल है एंड ऊपर एंट्री है. जो नीचे ख़राब रास्ता है, मतलब ये जो रास्ता है आने का, कितना लंबा है, मतलब कितना किलोमीटर अप्रॉक्स. हाँ मेन गेट से यहाँ तक 1000 मीटर. अच्छा ठीक है. ओके. सो बेसिकली जो एंट्री पे तो यहाँ से बेसिकली जो कार्स वगैरह हैं वो आती हैं. एंड जो ये वाला रास्ता है ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर इन्होंने बताया कि लंबा है. एंड इफ़ यू आर कमिंग हेयर विद योर कार, देन प्लीज़ अवॉइड कि आप खुद ड्राइव करके आओ कार ऊपर ये वाले रास्ते से. वाई? बिकॉज जो ये वाले रास्ते पे कट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. एंड इन्होंने नीचे ही गेट पे नंबर दिए हुए हैं ड्राइवर्स के.
सो इफ़ यू आर कमिंग हियर यू कैन, अगर आपकी पहले से बुकिंग है तो वेल एंड गुड, कॉन्टेक्ट द नंबर जो भी आपको दिया गया है। अदरवाइज नीचे गेट पे ही नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके ऊपर आ सकते हो। सो दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे 19, और हमें यहाँ पे लिटरली ठंड लगी। पहचाने हम। Alright, so good morning from मुक्तेश्वर। मतलब हाउ ब्यूटिफुल द मॉर्निंग कैन बी। मेरे पीछे क्या है? ओनली ग्रीनरी एंड जस्ट लुक देयर, पहाड़। सो दिस इज द सेकेंड डे ऑफ मुक्तेश्वर ट्रिप, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू दिस थिंग। एक बार ये पहाड़ देखो, बादलों से ढके हुए, एंड बादल स्टिल नहीं है, द बादल मतलब जो बादल हैं वो मूव कर रहे हैं। ऐसी मॉर्निंग हर सुबह हो तो क्या ही बात है। सो वी हैव दिस डे प्लान्ड आउट वेरी वेल, एंड कल रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है। मैं अभी यहाँ पे क्लिप्स ऐड करूँगी, सो जस्ट लुक एट दैट। सो नाउ वी आर हियर फॉर द ब्रेकफास्ट। सो बेसिकली द प्लान वॉज आई हैड टू गेट रेडी एट 7 o'clock एंड हमें 8 बजे तक यहाँ से निकलना था, सो दैट हम 9 बजे तक मुक्तेश्वर में पहुँच जाए। बट इट इज़ ऑलरेडी 8:30 अभी, एंड द ब्रेकफास्ट इज स्टिल बीइंग प्रिपेयर्ड। सो आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट वी विल गो स्ट्रेट अवे टू मुक्तेश्वर। यस, एंड वी हैव डिसाइडेड टू रेंट अ स्कूटी ओवर देयर। सो देयर इज़ दिस बैडमिंटन कोर्ट हेयर, एंड ये मैं रात में कैप्चर नहीं कर पाई थी। यहाँ पे एक्टिविटी एरिया भी है विच इज़ इन यू। ये देखो, दिस एरिया इज़ नॉट मेंटेन बाय द वे। यहाँ पे सांप मिल सकते हैं। सो आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस टेंट यस्टरडे एंड लुक हियर। ये ऊपर एक्टिविटी एरिया और ये नीचे देखो गड्ढा। सो जिसको भी सुसाइड करना हो वो यहाँ पे आ सकता है। एंड यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे नेस्ट भी है, एक इधर भी है और एक उधर भी था ऊपर कहीं पे। और ये चींटी देखो कितनी बड़ी है। एंड ये जो मड मसाला जहाँ पे डाइनिंग एरिया है, इसके साथ ही ये देखो कितना सुंदर है। This is the variety in the breakfast. सो इसके बाद हम आ गए भटेलिया मार्केट में, जो कि मुक्तेश्वर की मेन मार्केट है। और यहाँ पे घूमने का बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे स्कूटी रेंट कर लो, जो स्कूटी आपकी आ जाएगी 600 to 700 रुपीज़ में। मैंने कहाँ से स्कूटी रेंट करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नंबर ऑल्सो, एंड दिस इज़ द शॉप। ये जो भटेलिया मार्केट है, यहाँ पे घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए कुछ खास नहीं है, पर यहाँ से आप स्कूटी रेंट कर सकते हो या फिर अपनी ज़रूरत का कुछ सामान ले सकते हो। सो ये है मेन मार्केट, और मेन मार्केट से नीचे की साइड वेस्ट डायरेक्शन में है भालूगढ़ वाटरफॉल, और ऊपर की साइड है मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। एंड मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल के साथ ही 2-3 और जगह भी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप। तो अब हम लोग पेट्रोल पंप आ गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, जहाँ से आप स्कूटी रेंट पे लोगे वहीं से 50 मीटर की दूरी पे वाला पेट्रोल पंप है, और यहाँ से व्यू। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं। लोग यहाँ पे कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं।
भाई मुक्तेश्वर घूमने का असली मजा है स्कूटी या फिर बाइक। डोंट इन्वेस्ट इन टैक्सीज, इन्वेस्ट इन स्कूटीज एंड बाइक। एंड ट्रूली दिल्ली में भी ऐसा मौसम होना चाहिए। So our first stop will be भालूगढ़ waterfalls और ये मुक्तेश्वर का best waterfall है. The best time to visit this waterfall is after monsoon. That is from July to October. Here I found a perfect place to click pictures. तो अगर आप मुक्तेश्वर आए हो तो आप बटेलिया पे भी रुक सकते हो। पीछे जो मैंने आपको मार्केट दिखाई थी दैट वाज आल्सो बटेलिया मार्केट। और यहाँ पे ही जो ये पिक्चर क्लिक करने वाली मैंने आपको जगह बताई है, इधर ही बहुत सारे कॉटेजेस भी। ऑफिशियली वेलकम टू मुक्तेश्वर। तो अब हम आ गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल और अगर आप भी नेचर लवर हो, आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और ये सामने आपको छोटा सा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये है भालूगढ़ वाटरफॉल का बोर्ड। और अभी यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं इसी बोर्ड के सामने से, पर आपको आगे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। देयर इज़ दिस थिंग। सो ये रास्ता कुछ ऐसा है और नीचे पार्किंग है। रास्ता यहाँ, अब ये वाला रास्ता यहाँ से नीचे जा रहा है। सो ये वाटरफॉल जो है ना वो थोड़ा सा नीचे जाके है, आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी नीचे जाने के लिए, देन यू विल रीच दैट। सो इसकी एंट्री यहाँ से नहीं है, इसकी एंट्री कहीं और से है। हाँ, सो हम ट्रैक करके ऊपर चले गए थे, लेकिन हमें वहाँ पे जो शॉप दिखाई थी ना, उन्होंने बोला कि आपको दोबारा से नीचे लेना पड़ेगा और टिकट लेनी पड़ेगी, बिकॉज एंट्री यहाँ से नहीं है। यहाँ पे ये लगे हुए हैं रोप्स वगैरह, लेकिन हमने यहीं से लोगों को जाते हुए देखा था। एंड वहाँ पे रिव्यूज़ लिए तो लोगों ने बोला कि कुछ खास वाटरफॉल है नहीं, बट आई विल ऐड सम क्लिप्स हियर। सो वाटरफॉल की एंट्री के एकदम सामने आपको ये वाला गेमिंग जोन मिलेगा, जहाँ पे हमने बहुत सारी गेम्स खेली। अब हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। बारिश स्टार्ट होने वाली है। वाइड एंगल करो, वाइड एंगल। सो भालूगढ़ वाटरफॉल से टेंपल जाते हुए आपको ये क्रेज़ी मोमो वाली शॉप दिखेगी। यहाँ के वेज मोमोज ट्राई करना मत भूलना। वन ऑफ द बेस्ट मोमोज आई हैव एवर ईटन। अब हम खाएंगे मोमोज नज़ारों का व्यू लेते हुए। सो वो मोमोज़ वाली जो शॉप थी वो उधर थी, और इसके सामने ही ये है। आप यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हो खाना वाना, और इधर एक हैंडलूम्स की शॉप भी है। एंड नाउ वी आर हेडेड टूवर्ड्स मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। और यहाँ पे हमारा स्कूटी लेना बहुत ही काम आया, बिकॉज एज यू कैन सी द ट्रैफिक। और यहाँ पे हम कम से कम 30 मिनट ट्रैफिक में फंसे रहे। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे घूमने तो प्लीज़ स्कूटी ही रेंट करना, बिकॉज कार में तो भाई आप जाम में फंसने वाले हो।
तो ये हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। सो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और इसका नाम मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर महादेव ने एक राक्षस को मुक्ति प्रदान की थी और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग खुद ही उत्पन्न हुआ था। तो हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। सो दिस इज़ मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल वहाँ पे है एंड उसके ही एकदम सामने जो व्यू है दैट इज़ ब्रेथ टेकिंग। यहाँ पर ये बड़े वाले नींबू बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे बुरांश का फल बहुत मिलता है और यहाँ पे उसका जूस भी हर जगह मिलेगा आपको, तो वो ज़रूर ट्राई करना। किस किस के लिए बढ़िया होता है, कौन कौन सी? एक्चुअली जो बुरांश है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट, स्किन, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है 6 मंथ है, इसको मैं नींबू दे पीती हूँ, इसमें सोडियम मेंजोर नहीं है और सबसे बड़ी बात इसमें मीठा नहीं है। अच्छा, ये इसका नेचुरल मीठा है? नहीं, अभी तो मैंने आपको एक खट्टा मीठा बना के दिया मैं। ओके ओके। और बुरांश के अंदर में लेमन पड़ना भी चाहिए, नींबू से तो इसका और अच्छा बनेगा। सो यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है मंदिर की तरफ। सो ये वाला रास्ता ऊपर जा रहा है मंदिर की तरफ और ये नीचे की तरफ से जा रहा है चौली की जाली। ऐसा माना जाता है कि यहाँ चौली की जाली में बहुत टाइम पहले एक गॉडेस और डीमन का फाइट हुआ था और उसी फाइट के जो निशान है वो इन रॉक्स पे पाए जाते हैं। तो हम उधर जा रहे हैं, वो वाला है पॉइंट जहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी आगे मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चौली की जाली। क्या मतलब होता है चौली की जाली का? चौली का मतलब होता है रॉक एंड जाली का मतलब होता है नेट। तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं जो आपको अभी आगे वीडियो में दिखाई देंगी वो एकदम नेट की तरह दिखाई देती हैं, इसीलिए उसका नाम चौली की जाली पड़ा। यहाँ से आप बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज लाइक रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, लेडर क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये रही क्लिफ, यहाँ पे ये लोग आपकी वीडियोस भी बनाते हैं। अगर आप बनवाना चाहो तो प्रॉपर आपका ड्रोन शूट हो जाता है। उसके चार्जेस वगैरह मैं आपको बताती हूँ। And Chauli Ki Jali is one of the best places in Mukteshwar for sunrise and sunset views. So if you're coming here, please don't miss this place and click a lot of pictures. अभी हम ऊपर थे एंड यहाँ से जो मैंने आपको जगह दिखाई है वो यहाँ पे थी, यहाँ पे वो लोग वीडियो शूट करें। पर यहीं से अगर आप नीचे आओगे तो आपको एक और लोकेशन दिखाई देगी जहाँ पे कोई भी नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। अब देखो वहाँ पे आंटी अंकल बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए थे, अब चले गए। तो अब यहाँ पे भी अलग से आके शूट कर सकते हो। यहाँ से व्यू स्कैरी, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक होती है जिप लाइनिंग। तो ऊपर 300 रुपये देने के बजाय जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, यू कैन कम हेयर एंड यू कैन डू द जिप लाइनिंग। आपने बहुत जगह जिप लाइनिंग करी होगी, बहुत जगह बंजी जंपिंग करी होगी, बट जस्ट लुक हेयर, एक बार यहाँ पे करके दिखा दो। दिस इज अल्टीमेट। नीचे देखो नीचे, एंड द प्राइस इज ओनली 500 रुपीज़। चौली की जाली से वापस भटेलिया मार्केट जाते हैं, आपको ये शॉप दिखाई देगी, कॉफ़ी शॉप, जिसके बाहर लिखा हुआ था स्टॉप हेयर एंड स्मेल द कॉफ़ी। और ऐसा हो नहीं सकता कि कॉफ़ी मुझे बुलाए और मैं ना जाऊँ। इंटीरियर वॉज वेरी नाइस, आई सॉ द बुक्स देयर एंड यहाँ पे कुछ क्यूट चीज़ें रखी हुई हैं जो आप ले भी सकते हो, यू कैन परचेज देम। एंड यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी। दिस इज़ द नेम ऑफ द शॉप बाय द नेम ऑफ कैफ़े गहाना और दिस खाना, आई डोंट नो, बट द कॉफ़ी एंड द वाइब वॉज अमेजिंग। आई हैड टू कैप्चर दिस। यहाँ पर रास्ते में आपको ये मुक्तेश्वर लॉज दिएगा। और मेरी फ्रेंड ने
ऐसे में मैंने रेड लिया है, मेरी फ्रेंड ने ऐसे में ब्राउन कलर लिया है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। Okay. So we were actually looking for the fridge magnets over here, पर हमें कोई अच्छे फ्रिज मैग्नेट्स नहीं मिले जैसे हम हमेशा लगाते हैं अपने फ्रिज पे। आई शो यू द कलेक्शन आफ्टर गोइंग होम। तो हमें 3D में चाहिए थे पर हमें मिले नहीं। सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग दीज एज अ सुवेनियर टू आवर होम। सो होटल वापस जाते हैं हम। यहाँ पे रुके थे एंड लुक बिहाइंड मी, चलते हुए बादल एंड लुक ओवर हेयर। दिस इज़ वाई आई वॉन्टेड टू कम हेयर व्हेन इट वॉज रेनिंग। लुक ओवर देयर, बादलों की नगरी मुक्तेश्वर में आपका स्वागत है। ये रहा हमारा कॉटेज और इधर पीछे ही ये वाले फ्लावर। मैंने ये वाले फ्लावर्स ना इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखे हैं। एंड जस्ट लुक ओवर हियर, नीचे पूरे में फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ये वाला जो रास्ता है ये आगे जाता है एंड बादल ही बादल, दोबारा से बादल आ गया। अभी पूरा जो व्यू है ना दिखाई देने लग गया था, बट नाउ इट्स ऑल फॉगी एंड क्लाउडी। एंड प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना, इज़ इट फॉग और इज़ इट क्लाउड? लाइक आर दीज क्लाउड्स? आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज इतनी ज़्यादा भी यहाँ पे ठंड नहीं है, बट स्टिल आई कैन सी दिस थिंग। तो आई थिंक ये क्लाउड्स ही हैं बिकॉज हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग भी हो रही है। ओके, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन इंसिडेंट दैट हैपन येस्टरडे। सो कल अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपने देखा होगा व्हेन वी वर गोइंग टू भालूगढ़ वाटरफॉल्स, तो वहाँ पे ऐसे रस्सियाँ सी लगी हुई थी जो कि नीचे थी एंड वहाँ से और भी लोग ऊपर जा रहे थे। सो वी ऑल्सो वेंट विद देम एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब थोड़ा सा हम बीच में पहुँचे, तो वहाँ पे एक शॉप थी एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर शॉपकीपर ने हमको बोला कि आप लोग वापस जाओ बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंट्री और आपको टिकट लेकर आनी है। पर अब तो हम ऑलमोस्ट जो है हाफ डिस्टेंस कवर करके नीचे तक पहुंच गए थे। अब हम दोबारा से ऊपर ट्रैक करके जाते, फिर दोबारा से टिकट लेते, फिर उतना ही ट्रैक करके आते। तो बीइंग अ टूरिस्ट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना कर देंगे तो हाउ विल वी ट्रैवल दी अदर प्लेसेस। बट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझा। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड बीइंग अ लोकल उनका यही सोर्स ऑफ अर्निंग है, बट स्टिल वो जो बंदा था एकदम ही हमसे लड़ने लग गया कि लाइक आप ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर एक वहाँ पे ट्रैवलर्स थे तो उन्होंने हमें अपनी टिकट दे दी कि आप हमारी टिकट ले लो, अब जाओ यहीं से, अब आप दोबारा से ऊपर क्या जाओगे। तो फिर उसने हमें तब भी अलाउ नहीं करा। तो फिर हम जो थे वो भालूगढ़ वाटरफॉल्स गए ही नहीं बिकॉज हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं था जाने का। इतनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, यू विल नो ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको आई थिंक पिक्चर्स वगैरह भी आई थिंक डाली दी थी। सो ये हुआ था। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो इफ़ यू आर गोइंग टू मुक्तेश्वर, अगर आप अपने कार से जा रहे हो सो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो कि वहाँ पे जब आप घूमने जा रहे हो टूरिस्ट प्लेसेस तो वो कार लेके मत जाओ। बिकॉज लेट मी टेल यू, जो मेन मार्केट है जिसका नाम अभी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, यहाँ से अगर आप वेस्ट की साइड जाते हो, वेस्ट की साइड जाकर आपका मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल आता है एंड मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल के पास ही दो और पॉइंट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, चौली की जाली पड़ता है और उधर से ही राइट, मतलब ये मुक्तेश्वर टेम्पल है तो इसके लेफ्ट में ही चौली की जाली की एंट्री है और उसके राइट में ही 0 पॉइंट की एंट्री है। ठीक है, बट हम 0 पॉइंट नहीं देख पाए बिकॉज हमें लगा कि ये सनसेट पॉइंट ही है, पर आपको वहाँ पे जाना है बिकॉज दैट इज़ ब्रिटिश, मतलब जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, दैट इज़ टोटली ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो आप वो ज़रूर जाके देखना। एंड वहीं से जो मैंने अगेन मैं दोबारा से मार्केट का नेम मेंशन कर रही हूँ, यहाँ से अगर आप वेस्ट के उल्टी डायरेक्शन में जाओगे, हाँ ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, तो यहाँ से अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो यू विल फाइंड भालूगढ़ वाटरफॉल्स। तो उस मार्केट, जो वो मेन मार्केट है, आपको वहाँ से स्कूटी रेंट की शॉप्स मिल जाएगी। आप वहाँ से, आई विल एडवाइस कि आप स्कूटी या बाइक ही रेंट करो बिकॉज मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ, एज मैंने आपको क्लिप्स दिखाई दी थी पहले, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था।
तो जाम से बचने के लिए आप स्कूटी में जाओगे तो बेटर रहेगा। ऑल्दो वहाँ पे 50-50 रुपीज़ में लोग स्कूटीज़ पे भी आपको ड्रॉप करते हैं। आपसे 50 रुपीज़ लेंगे, आपको पूरा एंड तक छोड़ के आएंगे। 50 रुपीज़ लेंगे और आपको वापस मुक्तेश्वर टेम्पल ही छोड़ेंगे, मतलब ऐसा भी वहाँ पे सीन है। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू भालूगढ़ वाटरफॉल्स, उसके सामने एक गेमिंग जोन था, हम वहाँ पे चले गए थे एंड वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, बहुत सारी गेम्स खेली। Mornings in Mukteshwar are real magic. As you step out of your cottage, the world greets you with a soft hush, clouds floating lazily over the hills, wrapping the mountains like a dream. The air is crisp, the silence pure, and in that moment, time slows down. And with a warm cup of tea or coffee in your hands, you don't just watch the view, you feel it in your soul. This is Mukteshwar. If you're coming to Mukteshwar, don't rush. This is what I'll suggest. Stay in a good resort जहाँ पे आप views को enjoy करो, relax करो, nature को breathe करो. Yes, that is how you are going to see the real Mukteshwar. Because real Mukteshwar is much more than the tourist places. और इसी के साथ ये वाली ट्रिप भी एंड होती है. See you in the next video and in the next destination, that is Rishikesh.